بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش، کنگز معاون ارینا، آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس، 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنز پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز معاون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ انڈیا میں 1,69,000 نئے کووڈ کیس، ایمز کے چیف نے کہا صورتحال قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔ چھتیس گڑھ کے 17 ضلعوں میں لاک ڈاؤن، مہاراشٹر میں بورڈ امتحانات ملتوی کر دیے گئے۔ کورونا وائرس کے سائے میں رمضان شروع، سعودی عرب کی تمام مسجدوں میں تراویح کا وقت گھٹا دیا گیا۔ نتانز فیسلٹی پر حملے کے لیے اسرائیل سے بدلہ لیا جائے گا، ایرانی وزیر خارجہ نے دی وارننگ، کہا عالمی طاقتوں کے ساتھ بات چیت متاثر نہیں ہوگی۔ نتانز حملے کے لیے تل ابیب ذمہ دار، موساد کی کارستانی ہے، اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ، حکومت خاموش۔ ایران اسرائیل تناؤ کے بیچ امریکی وزیر دفاع نے کیا تل ابیب کا دورہ، نیتن یاہو سے ملاقات، کہا اسرائیل کی فوجی برتری برقرار رکھیں گے۔ سعودی عرب کے کئی مقامات پر حوثی حملے، جدہ ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا۔ امریکہ کے منیاپولس میں پولیس نے بلیک نوجوان کو گولی مار دی، شہر میں تناؤ، جارج فلائیڈ جیسے مظاہرے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے بات کووڈ کی۔ انڈیا میں ایک دن میں 1,69,000 کے قریب کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اس طرح ڈیلی انفیکشنز نہ صرف ریکارڈ بلکہ غیر معمولی سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 904 موتیں بھی ہوئیں۔ کووڈ 19 کا ریکوری ریٹ بھی گھٹ کر 90% سے کم ہو گیا ہے۔ فی الحال ملک میں ایکٹیو کیسز 12 لاکھ کے قریب ہیں، بلکہ 12,02,000 ہیں۔ وبا شروع ہونے کے بعد سے یہ سب سے زیادہ ایکٹیو کیسز ہیں۔ ICMR نے بتایا کہ مختلف لیبارٹریز میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 11,80,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک کے ایکٹیو کیسز میں مسلسل 33ویں دن اضافہ ہوا۔ 904 نئی موتوں میں مہاراشٹر کی 349، چھتیس گڑھ کی 122، اتر پردیش کی 66، پنجاب کی 59 اور گجرات کی 54 موتیں شامل ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک 10 کروڑ 45 لاکھ سے زیادہ کووڈ ویکسین ڈوزز دیے جا چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 29,33,000 سے زیادہ ڈوزز دیے گئے ہیں۔ کئی ریاستوں میں لاک ڈاؤن اور پابندیوں کا رجحان ہے۔ چھتیس گڑھ حکومت نے 17 ضلعوں میں لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ مہاراشٹر حکومت بھی لاک ڈاؤن پر غور کر رہی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ اس سلسلے میں قطعی فیصلہ چہارشنبے کو کیا گیا۔ پتہ چلا ہے کہ چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے لاک ڈاؤن لگانے کے حامی ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں آل پارٹی میٹنگ اور پھر اس کے دوسرے دن کووڈ ٹاسک فورس کے ساتھ میٹنگ میں کہا کہ انفیکشنز کی چین کو توڑنے کے لیے لاک ڈاؤن ضروری ہے، لیکن لاک ڈاؤن لگانے سے پہلے کچھ احتیاطی قدم اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی، خاص طور پر غریب لوگوں کی گزر بسر متاثر نہ ہو۔
हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पंजाब, गुजरात, राजस्थान और दूसरे कई मकामात पर नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। एम्स के चीफ ने कहा कि मुल्क की कोविड सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोविड इन्फेक्शन की रफ्तार इस मरतबा बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि लोग कोविड उसूलों पर अमल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से केसों में इजाफा हो रहा है। रणदीप गुलेरिया ने गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल कराने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने अवाम से कहा कि वो कोविड-19 के खिलाफ जल्द से जल्द टीका लें। महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। रियासती वजीर तालीम ने कहा कि फिलहाल अब ये इम्तिहानात मई और जून में होंगे। इस दौरान कोरोना वायरस की वजह से सिविल एविएशन की वजारत ने फैसला किया कि फ़्लाइट में मील सर्विस सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जो 2 घंटे से ज़्यादा वक्त का सफ़र करेंगे। इस फैसले पर 15 अप्रैल से अमल होगा। हिंदुस्तान की हुकूमत ने रशिया की वैक्सीन स्पुतनिक 5 को मंजूरी दे दी है। ये मुल्क में दी जाने वाली तीसरी वैक्सीन होगी। अब तक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड मुल्क में दी जा रही थी। तेलंगाना में 2251 नए कोविड इन्फेक्शन पाए गए और 6 मौतें हुई। रियासती हुकूमत के हेल्थ बुलेटिन में ये बात कही गई। जीएचएमसी में सबसे ज्यादा 355 केसेस पाए गए। तेलंगाना में फिलहाल 21,864 एक्टिव केसेस हैं। जापान में 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी गई है। वजारत सेहत ने ये बात बताई। अब देखते हैं मिडल ईस्ट की खबरें। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा है कि नतान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले के लिए इसराइल से बदला लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि इस वाक़े की वजह से आलमी ताकतों के साथ न्यूक्लियर डील बहाल करने के बारे में बातचीत मुतासिर नहीं होगी। अरकान पार्लियामेंट के साथ एक मीटिंग में जवाद ज़रीफ ने कहा कि इसराइल के आला ओहदेदारों ने साफ तौर पर कहा था कि वो न्यूक्लियर डील बहाल करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे। जवाद ज़रीफ ने कहा कि अब इन लोगों का ख्याल है कि वो अपना मकसद हासिल कर सकते हैं, लेकिन सहयूनियों को और ज़्यादा न्यूक्लियर सरगर्मियों के ज़रिए जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान इस वाक़े की वजह से बातचीत से इनकार करते हुए इसराइलियों के जाल में नहीं फंसेगा। जवाद ज़रीफ ने कहा कि नतान्स की फैसिलिटी को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा और मज़ीद असरी सेंट्रीफ्यूजेस इस्तेमाल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बुज़दिलाना हरकत से बातचीत में हमारी पोजीशन और मजबूत होगी। बातचीत में हिस्सा लेने वाली दूसरी पार्टियों को मालूम होना चाहिए कि नतान्स में जदीद सेंट्रीफ्यूजेस लगाए गए हैं। ईरान की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीबजादा ने कहा है कि न्यूक्लियर साइट पर हमला सहयूनी हुकूमत की कारस्तानी है, जो मुसलसल कहती रही है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना चाहिए। ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन इदारे के चीफ अली अकबर साली ने कहा कि पीर को नतान्स में इमरजेंसी पावर सिस्टम लगा दिया गया है। एक साइबर हमले की वजह से नतान्स फैसिलिटी में एक दिन पहले ब्लैक आउट हो गया था। इसके लिए इसराइल पर शुबा जाहिर किया जा रहा है। ईरान ने इसे न्यूक्लियर दहशतगर्दी करार दिया है। इसराइल ने सरकारी तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन मकामी मीडिया में कोई सेंसरशिप नहीं लगाई गई है, जिसने साफ तौर पर कहा है कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद इस हमले के लिए जिम्मेदार है। इसराइल के आर्मी चीफ ने भी इशारा दिया है कि नतान्स न्यूक्लियर साइट पर हमले में इसराइल का रोल है। इसराइल के आर्मी चीफ एवी कोचियो ने कहा कि पूरे मिडल ईस्ट में इसराइल के ऑपरेशंस दुश्मनों की नज़रों से छुपे हुए नहीं हैं, वो हमें देख रहे हैं और हमारी सलाहियतों पर नज़र रखे हुए हैं और इसके हिसाब से अपने कदम उठा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने कहा है कि उसने ईरान ने कहा है कि उसने निशानदेही कर ली है कि नतान्स फैसिलिटी पर हमले और शटडाउन के लिए कौन शख्स जिम्मेदार है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन इतवार को एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि इसराइल और उसकी प्रॉक्सीज के खिलाफ लड़ाई एक बहुत बड़ा मिशन है। नेतन्याहू ने पीर को अमेरिका के वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की, जो एक नाजुक वक्त में मिडल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं। समझा जाता है कि इस दौरे का ताल्लुक वियना बातचीत से है। अमेरिका के नुमाइंदे भी वियना बातचीत में इनडायरेक्ट तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। इस बातचीत का मकसद न्यूक्लियर डील बहाल करना है, जिससे ट्रंप हुकूमत ने 2018 में खास कर दिया था। इस दौरान इसराइल के दौरे के मौके पर अमेरिकी वजीर दिफा ने कहा कि वाशिंगटन इस बात का पाबंद है कि इसराइल को मिडल ईस्ट में फौजी बरतरी हासिल रहे। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट स्विमिंग पूल वॉलीबॉल जॉगिंग पार्क टेबल टेनिस जिम चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा किंग्स माविन अरेना पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस ऑपोजिट रिलायंस मार्ट टोली चौकी हैदराबाद किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड गेटेड कम्युनिटी वाटर पाइपलाइन ड्रेनेज इलेक्ट्रिसिटी BT रोड से आरास्ता HMDA अप्रूव्ड लेआउट आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर प्लॉट खरीदें रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस अपोजिट रिलायंस मार्ट टोली चौकी हैदराबाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। इंडिया में 1,69,000 नए कोविड केस। एम्स के चीफ ने कहा सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है। छत्तीसगढ़ के 17 जिलों में लॉकडाउन। महाराष्ट्र में बोर्ड इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। कोरोना वायरस के साए में रमजान शुरू। सऊदी अरब की तमाम मस्जिदों में तरावी का वक्त घटा दिया गया। नातांज फैसिलिटी पर हमले के लिए इसराइल से बदला लिया जाएगा। ईरानी वजीर खारिजा ने दी वार्निंग। कहा आलमी ताकतों के साथ बातचीत मुतासिर नहीं होगी। नातांज हमले के लिए तेल अवीव जिम्मेदार। मोसाद की कारस्तानी है। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट। हुकूमत खामोश। ईरान इसराइल तनाव के बीच अमरीकी वजीर दिफा ने किया तेल अवीव का दौरा। नेतन्याहू से मुलाकात। कहा इसराइल की फौजी बरतरी बरकरार रखेंगे। सऊदी अरब के कई मकामात पर हूसी हमले। जद्दा एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। अमेरिका के मिनियापोलिस में पुलिस ने ब्लैक नौजवान को गोली मार दी। शहर में तनाव। जॉर्ज फ्लॉयड जैसे मुजाहरे। डायरेक्टर मिडिल ईस्ट की खबरों के सिलसिले को यमन के हूसियों और उनके इत्तेहादियों ने सऊदी अरब में एक मरतबा फिर कई हमले किए और दूर दराज के मकामात को निशाना बनाया। हूसी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने कहा कि पीर को सऊदी अरब में ऑपरेशंस के लिए 17 ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। जुबैल और जद्दा में आरामको रिफाइनरीज भी 10 ड्रोन से निशाना बनी। तर्जुमान ने बताया कि सऊदी अरब के शहरों खमीस मुशीत और जीजान के हसास फौजी ठिकानों को कसफ 2 ड्रोन से निशाना बनाया गया। यह ऑपरेशन इतवार की शाम शुरू हुआ जो पीर की सुबह तक जारी रहा और इसे एक कामयाब ऑपरेशन बताया गया। याहिया सारी ने बताया कि जब तक सऊदी अरब की जारहियत और नाकाबंदी बरकरार रहेगी इंतकामी हमले किए जाते रहेंगे। एक रिपोर्ट में कहा गया कि हमलों की वजह से जद्दा एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। सऊदी ओहदेदारों ने सरकारी तौर पर इस रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहा। जद्दा यमन सरहद से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर है। इस दौरान हूसी तर्जुमान ने कहा कि मारीब में हूसियों ने कई कामयाबियां हासिल की हैं।
तुर्की में मजीद 10 साबिक एडमिरल्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बहरे रोम या मेडिटेरियन में एक नहर की तामीर के मंसूबे पर तनकीद की है, इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये साबिक एडमिरल्स उन 100 से ज़्यादा साबिक फौजी ऑफिसर्स में शामिल है जिन्होंने सदर तैयब एर्दोगान को एक ख़त लिखते हुए इस प्रोजेक्ट पर एतराज़ किया था। अमेरिका के मिनियापोलिस टाउन में पुलिस ने एक 20 साल ब्लैक नौजवान को गोली मार दी, जिसके बाद ज़बरदस्त एहतजाज शुरू हो गया। इस ब्लैक नौजवान की हलाकत के बाद लोगों ने एहतजाज किया और ट्रैफिक ठप कर दी। सैकड़ों लोग सड़कों पर निकल आए, उनके हाथों में बैनर्स थे। ये वाक़या उसी जगह पेश आया जहां पिछले साल जॉर्ज फ्लॉयड नामी ब्लैक नौजवान को हलाक किया गया था। मारे गए नौजवान की पहचान डॉट राइट की हैसियत से की गई है, जिसे ब्रुकलिन सेंटर के करीब उसकी कार में गोली मारी गई। पहले से ही इस इलाके में तनाव पाया जाता है, जहां जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरे किए गए थे। इसराइली फौज ने पिछले 3 महीनों में 1300 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। फलस्तीनी कैदियों के लिए काम करने वाली एक तंजीम ने ये बात बताई। गिरफ्तार किए गए लोगों का ताल्लुक जिंदगी के अलग अलग शोबों से है। रिपोर्ट में कहा गया कि गिरफ्तारियों का मकसद फलस्तीनियों पर दबाव डालना है और उनके हौसले पस्त करना है। गिरफ्तार किए गए फलस्तीनियों में बच्चे भी शामिल हैं। उनकी तादाद 230 बताई गई है। इसके अलावा 30 औरतें भी शामिल हैं। फ़लस्तीनी ओहदेदारों ने मुसलमानों से कहा है कि वो रमज़ान के मौके पर मस्जिद अक़सा में अपनी मौजूदगी बढ़ाएं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि वो मुक़द्दस मकाम पर कोरोना वायरस के उसूलों पर अमल करें। एक बयान में ये बात कही गई। सऊदी अरब और दूसरे खलीजी मुल्कों में मंगल को पहला रोज़ा होगा। इस मौके पर सऊदी अरब की वजारत हज और उम्रा ने हरमैन शरीफैन के हवाले से बाज़ गाइडलाइंस जारी की हैं। हरमैन शरीफैन में इबादतों और नमाज और उम्रे के ताल्लुक़ से ये हिदायतें जारी की गई हैं। वजारत हज और उम्रा ने ये गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनके मुताबिक तरावी और क़यामुल लैल 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह हुक्म सऊदी अरब की तमाम मस्जिदों के लिए लागू होगा। सऊदी अरब के शाह सलमान ने हरमैन शरीफैन में 10 रकात तरावी की इजाज़त दी है और वक्त को भी महदूद कर दिया गया है। यूएई में भी इसी तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। तमाम मस्जिदों को हिदायत दी गई है कि इशा की नमाज और तरावी की नमाज आधे घंटे में पूरी की जाए। सऊदी ओहदेदारों ने अवाम से अपील की है कि रमज़ान के दौरान जिंदगियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम एहतियाती कदम उठाएं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखें। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इंडिया में 1,69,000 नए कोविड केस। एम्स के चीफ ने कहा सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है। छत्तीसगढ़ के 17 जिलों में लॉकडाउन। महाराष्ट्र में बोर्ड इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। कोरोना वायरस के साए में रमजान शुरू। सऊदी अरब की तमाम मस्जिदों में तरावी का वक्त घटा दिया गया। नातांज फैसिलिटी पर हमले के लिए इसराइल से बदला लिया जाएगा। ईरानी वजीर खारिजा ने दी वार्निंग, कहा आलमी ताकतों के साथ बातचीत मुतासिर नहीं होगी। नातांज हमले के लिए तेल अवीव जिम्मेदार, मोसाद की कारस्तानी है। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट, हुकूमत खामोश।
ایران اسرائیل تناؤ کے بیچ امریکی وزیر دفاع نے کیا تیل ابیب کا دورہ، نتن یاہو سے ملاقات، کہا اسرائیل کی فوجی برتری برقرار رکھیں گے۔ سعودی عرب کے کئی مقامات پر حوثی حملے، جدہ ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا۔ امریکہ کے منیاپولس میں پولیس نے بلیک نوجوان کو گولی مار دی، شہر میں تناؤ، جارج فلائیڈ جیسے مظاہرے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔